आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 60th वीडियो 14-60। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर के दूसरे सेक्शन का 5th श्लोक पढ़ेंगे। 2-2-5। पिछले सूत्र में द बॉडी वॉज नेगेटेड, प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण वॉज एस्टेब्लिश्ड। इन दिस सूत्र द एब्सोल्यूट is being understood further. जब प्राण नहीं तब शेष क्या? When pran is not, then what? Friends, this is Brahma Vidya. Yamraj has taken our Nachiketa to the lab. It is like experiments for the fit student. When one is negated, the presence of the other is established. Please know that the other is not known directly. It is only that its presence is established. यदि प्राण न रहे तो फिर क्या रहता है? What remains? ये है दोस्तों ये सूत्र। In this verse, the question what remains is given a second look. What remains is not known, but its presence is established. The answer is not achieved, but the clues to the answers are found. 2-2-5। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्ने तावु पाशितो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे धर्मराज? न प्राणेन न अपानेन, not by प्राण nor by अपान। मर्त्यः जीवति कश्चन, does any mortal live? इतरेन तु जीवन्ति, but it is by some other factor that they live. यस्मिन् एतौ उपासितौ, on which these two depend. यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात
नहीं है। कोई भी मनुष्य मर्त्य देहधारी ना तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये प्राण, जैसे बताया गया था पहले भी, ये तो परस्पर मिलकर प्रवृत्त होते हैं, किसी दूसरे के शेषभूत हैं ये दोस्तों। ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते। On a deeper understanding, it is seen that prana, etc., are also inert. They need some other support for the life to begin. They are not independent. That other, the conscious material, it is required. This pran, different types of pran, they need the support, some companionship of the consciousness. That consciousness which is independent to do its function is Atman. It is different from the प्राण, अलग है वो, भिन्न है वो। Dharmaraj is reinstating, man lives not because of his body, mind, intellect, equipment is functioning well. When the pranas function, but all signs of life's activities met with in a man alive depend upon the glorious touch of the self in him. कह रहे हैं the pranas function only when life resides in the body. The pran is like an assemblage. बहुत सारे parts हैं इसमें दोस्तों. The parts of an assembly constituting the assemblage are in themselves not independent. They are not free. They constitute together and maintain themselves as such only for the benefit of somebody other. दोस्तों ये वेस्टर्न थॉट में बहुत प्रोमिनेंट है कि गॉड और सुपर कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट और द सेल्फ और दिस अदर is negated. It is believed that assembly हो गई तो फंक्शन शुरू हो जाता है, like tick tick of the clock. But Sanatan thought does not believe so. हम तो ये मानते हैं, जैसे दोस्तों आपका घर है तो घर की जो दीवारें हैं एटसेट्रा, या आपकी कार है, कार के व्हील्स हैं, स्टीयरिंग सिस्टम है, these all are the parts of the assembly which constitute together the assemblage. And this commodity assembly is not built for its parts.
they all are together to form an entire whole, only to make the master happy. The owner of these assemblages is free to walk out or walk in at his own sweet will. जैसे यह ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में क्लियर है, वैसे ही दोस्तों दिस इंद्रियास, limbs of the body, the mind and intellect are all parts of the body assembly which exist only for the sake of the पुरुष in it. जो parts हैं, in themselves they are not free to act as they wish, while the Purush can walk out of the body in all freedom at the time of death. And friends, once the Purush discards the body, it perishes. In the same way as when the owner discards his object assemblages, they perish. When Atman leaves the body perishes. Friends, the source of life is not the pranas. The pranas end and perish themselves when the Atman, the source of life, discards the body. शास्त्र की भाषा में दोस्तों, it is known that all actions, physical, mental and intellectual, are प्राणवृत्तिस. पहले धर्मराज ने बताया कि ये बॉडी नहीं, देह नहीं, देह को मानो ये नहीं है, नेगेट करो इसको अपने एक्सपेरिमेंट में, तो फिर क्या, ऐसे आत्मन को दर्शाया. अब और गहराई से बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोग तो कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, अब सब चला गया, कुछ नहीं बचा. इसीलिए ये बताया गया है दोस्तों कि प्राण जो है ना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव चीज़ ही है, ये इनर्ट ही है. इसको भी अपने फंक्शन करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है. प्राण इज़ द वाइटल फोर्स which runs through our body. डाउट्स आते हैं कि ये श्वास और प्राण एक ही है क्या? नहीं. Breath is the carrier of प्राण. It's a mere vehicle. फिर ये प्राण कहाँ से मिलता है? प्राण is obtained from all the 5 great elements on the earth. प्राण is available in the environment. तो फिर दोस्तों इतना जुड़ा हुआ है ये प्रकृति से. प्रकृति में अगर है वहाँ से मिलता है, ये अपने में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये मालिक तो नहीं हो सकता. और दोस्तों क्या स्टडीज़ की गई हैं हमारे यहाँ उस समय ही. प्राण moves in our body through unseen नाड़ीज. सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां उस समय डिफाइन कर ली गई थी दोस्तों. ये एक्यूपंक्चर की पूरी साइंस इसी पे चलती है दोस्तों. एक सांस लेते हैं आप तो 5 तरह की वायु आपके शरीर में प्रवाह करती है.
इसकी गति और दिशा से 33,000 तरह की वायु जानी गई है। इसलिए तो ये कह देते हैं कि जीवन प्राण से ही चलता है। 5 तरह के प्राण और 5 तरह के उपमान तो मेन डेफिनेशंस हैं दोस्तों, इसकी ढूंढे गए हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। दोस्तों, जैसे इंद्रियों के बारे में कहते हैं ना, देखो, लेकिन मतलब होता है कि 5 इंद्रियों के फंक्शंस के हिसाब से इसे जानो। वैसे ही इस सूत्र में प्राण अपान की बात की गई है, लेकिन वैसे ही मतलब ये है कि ये 5 की 5 जो प्राण हैं, ये केवल इनर्ट एलिमेंट्स हैं, चलते अपना फंक्शन करते ये और किसी के संग के कारण ही है। क्या कहा है? न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कहते तो हैं जब प्राण शरीर त्याग देता है तो बस फिर सब कुछ रुक जाता है। Everything comes to a standstill। इसलिए प्राण जो है यही सब कुछ हुए, यही वो भगवान हुए। इससे तो दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इम्प्लाई किया जाता है कि देयर इज नो सच थिंग एज द सेल्फ। रियलिटी या एब्सोल्यूट प्राण ही है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट वेस्टर्न थॉट, एज इफ देयर इज नो अदर मीनिंग टू लाइफ। व्हाई हैव वी टेकन दिस ह्यूमन बर्थ? दिस सूत्र particularly gives an answer to this effect. The body's death coincides with the departure of the prana. This seems to suggest that prana is responsible for our life on earth. And if that is so, then once the prana leaves, that is the end of our pilgrimage or traverse on earth. Our life comes to an abrupt end, as if life has got no other meaning than this. यह तो हमें मालूम है कि प्राण जो है ये लाइफ एनर्जीज हैं। Collectively they are called प्राण। These are most essential to maintain life in our body। लेकिन ये ऐसा मीन बिल्कुल भी नहीं करता that they are the cause of life। हम इसलिए नहीं जीते क्योंकि प्राण हमारे शरीर में आ गया है। प्राण जो है ये स्वयं इनर्ट है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सटल एलिमेंट्स। हमारे जीवन का, जीने का रियल कॉज दोस्तों कुछ और है। इट इज नॉट प्राण। What really remains after death? इस मिस्ट्री को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है।
जैसे मैंने बताया दोस्तों, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ नेगेटिंग, व्हेन वन इज नेगेटेड द प्रेजेंस ऑफ अदर इज एस्टेब्लिश्ड, द अदर इज नॉट नोन। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये दोस्तों सिर्फ पॉइंट करता है, उस फैक्टर को क्लू के तरह से बताता है, तो वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट का भी हाल है। द प्राण डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर, इट इज नॉट द अदर वे राउंड। The factor upon which our human birth is what has sent the प्राण to function in our body। यह है दोस्तों समझने वाली बात। पिछले सूत्र के हिसाब से यदि हम उस कैटेगरी के होते, हम मानते कि डेथ के बाद जो बचता है वो शरीर है, तो बस चैप्टर तो वहाँ ख़त्म हो गया था। लेकिन यदि हम उस कैटेगरी के थे, जैसे बताया गया था प्रोफेशनल्स, ज्ञानी, तो हमारे लिए था कि जो बचता है उसके बाद वो ब्राह्मण है, आत्मन है। उनके लिए दोस्तों फिर ये हमारा आगे का चैप्टर था। Now it seems we learn that the pranas depend on something else for their presence in the body. The factor could well be the answer to what remains. जैसे जैसे हम लोग डेथ के नज़दीक जाते हैं दोस्तों, ये सोच समझ मनन का विषय है। वैसे वैसे ही द आंसर्स वी आर लुकिंग फॉर बिकम मोर एंड मोर प्रेसिंग। ये डेथ की जो अनसर्टेनिटी है ना, यही द पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताती है दोस्तों। What is the reason why we take birth in the first place? क्यों हम आते हैं इस जीवन में? That is the deeper question behind what remains when we die. वो जानना इसलिए ज़रूरी है। यदि हम ये जान जाएं कि जब डेथ हो जाती है हमारी, तो क्या बचता है, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिलने की उम्मीद हो जाती है कि why we have come here first of all। तो ये है दोस्तों इस श्लोक का मतलब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म तत्व है ब्राह्मण। ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। एक प्रोफेशनल के लिए, स्पेशली इंडियन प्रोफेशनल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम इस जीवन में आए हैं। कथा उपनिषद यह बताने वाली सबसे सिंपल स्टोरी है दोस्तों भारत के शास्त्र में। I am pretty sure open secrets explanations of the sutras must be interesting for you. Please give this video a like. Please share it with your close contacts.
Please help us in enlarging our viewership. Thanks friends. फिर से मैं अपने इस वीडियो को बचपन की गांव की प्रेयर के साथ विश्राम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.